Good afternoon, everybody. Just pay my regards and respect to our Honorable Vice Chancellor, Madam. And first of all, I'd like to congratulate her on the felicitation that she has received from the Governor of West Bengal. And we are really proud of you, ma'am. And it's an honor for Hindi University to organize the next lecture series on competitive world literature. And it is solely the effort of our Honorable Vice Chancellor, ma'am, to instill such an inclusive discourse within us and envision the influx of a wide-ranged ideas that may exalt us to a new orientation and thoughts. We are really grateful to our Vice Chancellor, ma'am, for such a wonderful endeavor. And in regard to comparative world literature, I just want to say that literatures of the world are constantly evolving to adjust to changes in the as I specialize in environmental history, so I think in regard to the changes in the physical features of the earth and the traits of humans, that is literatures and languages are engulfing, they express the non-living physical world as well, and this is in turn developing anthropomorphic expressions that further can compose allegorical stories, describe machines and robots in the stories, and also can express mechanical human behavior that we see in the present world. And there's a theme. Comparative world literature has got many layers which we would come to know today, and we would learn today, and that would significantly respond to the changes of our physical world, of our emotional world, of our social world. And literature and languages are solely human dependent, and it is very much dependent on the ambience in which we live. So I really request our Honorable VC ma'am to give an inaugural speech and welcome address. Yes, Priyanka, please proceed. Please proceed with the webinar today. Okay, you can start. Thank you, ma'am. In the first instance, I request Professor Ram Bakhshat, who is a distinguished professor in Hindi literature, and his early careers ranged in various universities as lecturer, including Rohtak University and Mahorshi Dayanand University. From 2012 to 2014, he became the director of Center of Indian Languages, JNU, and he undertook pains to streamline syllabi of Indian schools and IGNOU as well. He has written great books on Prem Chand, which is really significant, and we are thrilled to know, and several analytical articles as well. His book on Prem Chand or Bhartiya Kisan and Dadu Dayal or Samakalin Hindi Alochuk are really significant. I request Professor Rambaks to deliver his lecture, and we are really thrilled to know. Thank you. Yeah, okay, so good morning everyone. Professor Rambaks, आपको नमस्कार and बाकी सारे मेरे जितने नमस्कार सर, मेरे जितने भी यहाँ स्टाफ मेंबर्स यहाँ ज्वाइन किए हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन किए, सबको a very good morning. Before Professor Rambaks takes over to deliver his lecture, I would just like to put a couple of words here. Professor Rambaks was my colleague at IGNOU, Indira Gandhi National Open University, long ago when I joined IGNOU as an associate professor of English. At that time, he had joined as a professor of Hindi, and we started working together. We were neighbors in the university as well as neighbors in the residence. You know, we both were living in the same building, and we have shared quite a few important events of our life and quite a few important moments, both academically and both personally. I have seen Professor Rambaksjat as one of the most eminent scholars in Hindi literature, as well as one of the most wonderful persons who would never give up. He worked in IGNOU as a professor of Hindi for some time, and after that, he shifted to JNU as a professor of Hindi. And during that period, he was going through a very big challenge in his personal life as well. His health was not supporting him when he left IGNOU and he went to JNU. And during that period, when all of us were very worried about Professor Rambaks,
that sir is not keeping well, and it was a very critical condition, a health condition for him. But we saw that he never lost his hope and his smile. He kept on smiling, he kept on working, writing his research papers, publishing his books, taking his classes. So, no matter what, with a very critical health issue, he fought it, he survived, he came out of it with smiles, with happiness, with glory, while not compromising his academic pursuits as well. So, to me, Professor Rambak's chat comes up not just as a good scholar and an excellent professor of Hindi, but also as a person, as a human being who has indomitable courage and conviction to do the things that he is born to do. So, he does civilizational work, he writes excellent books and poetry and fiction and critical papers, research articles, and everything. He recurrently uses is a simile. You can call it a metaphor actually. Chitani. He talks about Chitani everywhere. In many of his Facebook posts, his stories, and everywhere, that Chitani imagery comes up. So today, when he talks about Hindi literature as a part of world literature in our lecture series, Hindi University lecture series on comparative world literatures, I would definitely request Professor Rambaks to throw some light on the metaphor Chitani while situating, while engaging Hindi literature as a very important discourse in world literature. Thank you so much. Welcome, Professor Rambaks. I'm very glad to welcome you as a speaker in the very first month of my by the very first month of my joining Hindi University as the Vice Chancellor. You are the first speaker from the Hindi department. So welcome. Thank you, ma'am. May I start? Please. जी नमस्कार. मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि अंग्रेजी भाषा मेरे लिए बाहरी भाषा है. हम हिंदी विश्वविद्यालय की जी नमस्कार. हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू, मानविकी विद्यापीठ की निदेशक संस्कृत की प्रोफेसर कौशल पंवार और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर प्रियंका गुहा राय, और इस आयोजन में शामिल विश्वविद्यालय के सभी विद्वज्जनों, छात्रों और मित्रों. सबसे पहले तो इस वेबिनार में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं इस नई नवेली विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू का और विश्वविद्यालय का आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर कुछ बात कहने का अवसर प्रदान किया. हिंदी के लिए ये गैर प्रचलित विषय है. इस पर हिंदी में कम चर्चा होती है. हालांकि इसका प्रारंभ यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत में या बीच में हो गया था, लेकिन भारत में आते आते बहुत समय लगा और उसके बावजूद भी ये हिंदी में ज्यादा लोकप्रिय विषय नहीं. 1816 में इस विषय पर फ्रेंच में पहली पुस्तक लिखी गई. फिर मैथ्यू आर्नोल्ड ने 1848 में इसका जिक्र किया. जर्मन में 1854 में लिखा और तब तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन होने लगा. अब इसके बारे में 2-3 बातें शुरुआत में क्लियर करना जरूरी है ताकि ये विषय समझ में आए कि ये कोई साहित्यिक आंदोलन नहीं है. जैसे रोमांटिसिज्म एक लेखकों का आंदोलन होता है या रियलिज्म लेखकों का आंदोलन होता है, इस तरह का ये कोई साहित्यिक आंदोलन नहीं है. माने कोई लेखक तुलनात्मक साहित्य के नाम से कुछ नहीं लिखता, वो साहित्य लिखता. तो ये एक तरह के साहित्य के अध्ययन की विधा है. हम इसके माध्यम से अध्ययन करते हैं और गंभीर शोध की एक पद्धति है. इसलिए तुलनात्मक साहित्य को अध्ययन की पद्धति के रूप में ही माना जाना चाहिए. ये शुरुआत क्यों हुई, थोड़ी सी इस बैकग्राउंड को जान लें तो ये विषय में हमें आसानी से समझ में आएगा. यूरोप में 19वीं शताब्दी में सारे यूरोपियन जो देश थे वो उपनिवेश पर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ते थे. विशेष रूप से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में भीषण युद्ध था सभी उपनिवेशों में. भारत में भी फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो यहाँ युद्धरत थे और अनेक राजाओं से अपना रिश्ता बनाए थे. तो जब सब जगह युद्ध का वातावरण था तो विश्वविद्यालय के लोगों ने सोचा कि
किसी तरह से शांति की स्थापना की जाए, और शांति कैसे हो सकती है, और इसी शांति की खोज में तुलनात्मक साहित्य का प्रारंभ हुआ। और इन तुलनात्मक साहित्य वालों ने कहा कि हम जो है, जब दुनिया के दूसरे लोगों से मिलते हैं तो हम बहुत चीजों से हम प्रभावित होते हैं, और हमसे भी लोग प्रभावित होते हैं। तो ये कारण और प्रभाव और उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया, उस प्रभाव को हम कितना आत्मसात करते हैं, कितना नहीं करते, कौन सी चीज हमको ज्यादा अच्छी लगती है, नहीं लगती है, इस सब का अध्ययन करने के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि ये युद्ध सही नहीं है, हमारा मेल मिलाप सही है। और फ्रेंच विद्वानों ने सबसे पहले कहा, भाई इंग्लैंड में तो सर्वश्रेष्ठ शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर पे फ्रेंच का प्रभाव है, और शेक्सपियर का प्रभाव फ्रेंच साहित्य पर पड़ा। और इन्होंने उदाहरण दे दे करके, और जब शेक्सपियर का अध्ययन किया तो इस प्रभाव को ढूंढा, और ये कहा कि साहब हम एक दूसरे से प्रभावित हो, हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा प्रभावित होती है, तो हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा सही है या हमारा जो प्रभाव है वो सही है? इसलिए हम इस प्रभाव के बारे में बात करें कि एक दूसरे से हम कितने जुड़े हुए हैं। अब इसके साथ में दो एक बातें और है कि एक भाषा के दो लेखकों की तुलना तुलनात्मक साहित्य में नहीं होती, सामान्य आलोचना में होती है। हम जैसे कहते हैं, हिंदी में हमारे बड़ा प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सव जयंत करत प्रकाश। सूरदास जो है वो अलग है, तुलसी अलग है। सूर और तुलसी की या कबीर और मीरा की आप ये तुलना करते हो, तो ये तुलना तुलनात्मक साहित्य नहीं है। यूं तो जो तुलनात्मक साहित्य के जो विरोधी होते हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तुलना के बिना तो किसी चीज को समझ ही नहीं सकते, लेकिन जब हम तुलनात्मक साहित्य की बात करते हैं तो वो एक डेफिनेट चीज है, वो उसका एक तकनीकी अर्थ है, और अगर आप उस तकनीकी अर्थ में नहीं जाओगे तो वो एक आपने सामान्य आलोचना आपने कर दी, वो तुलनात्मक साहित्य नहीं होता। इसलिए दो अलग भाषाओं के लेखकों के बीच में जब तुलना होती है तब वो तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत आता है। एक ही भाषा के, माने रेणु और प्रेमचंद की आप तुलना करोगे तो वो तुलनात्मक साहित्य नहीं है, हालांकि दोनों अलग तरह के लेखक हैं। अलग तरह के होने के कारण आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। आप दूसरी भाषा के बारे में बात करो तब तुलनात्मक साहित्य की ये एक विशेषता तो यह है जिसको हमें देखना चाहिए। दूसरी बात, तुलनात्मक साहित्य के इन आरंभिक विद्वानों ने कहा कि तुलनात्मक साहित्य पाठ का अध्ययन करता है। पाठ होता है जिसका एक लेखक होता है, और तब जिसका पाठ नहीं होता उसका तुलनात्मक साहित्य नहीं हो सकता। इसलिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो लोक साहित्य होता है, वो लोक साहित्य का किसी साहित्य से तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। तो तुलनात्मक साहित्य के लिए पाठ बहुत जरूरी है, और जो पाठ का सृजन करता है हम उसकी तुलना करते हैं, और इस तरह से हम लेखक की तुलना करते हैं। तो पाठ का अध्ययन ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये विवाद हुआ कि साहब आप ये बताइए कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है दुनिया के, इनके साहित्य का हमारे से तुलना हो सकती है? तो अंग्रेज और यूरोपियंस में तो बहुत अहंकार था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये उपनिवेशों का हमसे तुलना नहीं हो सकती, हम तो सर्वकालिक श्रेष्ठ हैं, मतलब शेक्सपियर की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती, वो तो अतुलनीय। तो आप कैसे तुलना कर सकते हो? तो ये हुआ कि फ्रेंच का जर्मन से और स्पेनिश का, इनसे मतलब यूरोपीय भाषाओं की जो समृद्ध भाषाएं हैं उनसे तुलना हो सकती है। उपनिवेश तो अभी पिछड़े हैं, उपनिवेशों को तो अभी उनको बहुत विकास करना। मैकाले ने कहा इनके लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी की एक अलमारी में रखने लायक इनकी किताबें कुछ है ही आदि आदि। तो इसके अंदर जो मुख्य बात ये जाती थी कि जब आप तुलना करने के लिए जाते थे तो हमेशा ये होता था कि तुलना के अंत में हमने प्रभावित ज्यादा किया या हमने प्रभावित ज्यादा ग्रहण किया। तो ये क्या ये बही खाता की तरह से आप लोगों ने रहने वाले ने कहा कि कोई बही खाता थोड़े, जिस हिसाब लगाओगे, आपने 5 पैसा दिया हमने 10 पैसा दिया। और ये इस तरह से आपने ये जो तुलना के नाम पे, तुलनात्मक साहित्य के नाम पे अपने साहित्य को ही श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश होती है। इसलिए ये राष्ट्रवाद के विरुद्ध था, लेकिन अंत में ये राष्ट्रवाद को वापस ताकत देता, इसलिए ये उसकी भावना को रहता। फिर काग साहब ये
कौन लोग हैं जिन्होंने तुलनात्मक साहित्य के बारे में कहा। तो चिंतकों का विचार यह है कि जो किनारे पे रहते हैं, माने एक देश के नागरिक हैं और दूसरे देश में जाके रहते हैं, उन लोगों ने तुलनात्मक साहित्य के ऊपर काम किया। जो आरंभिक तुलनात्मक साहित्य के जो समर्थक लोग थे, वो लोग थे। माने कई बार हम भी कहते हैं और प्रवासी साहित्य के बारे में होता है कि भाई अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारत के ही गीत गाते रहते हैं, तो आप भारत को आप लेकर के गए वहां पे। तो और इसका हमारे लोक साहित्य में भी बहुत मजाक किया जाता है कि महिला जब ससुराल जाती है तो उसके बारे में कहते हैं कि धान खावे मांटी रोन गीत गावे बीरारा। ये तो खाना तो पति का खाती है लेकिन गीत अपने भाई का गाती, तारीफ अपने करती। तो जब ये प्रवासियों के बारे में भी कहते हैं कि हमारे देश में रहते हैं, हमारा पानी पीते हैं, हमारे ऑक्सीजन लेते हैं, और भारत की क्रिकेट टीम जब छक्का चौका लगाती है तो ये बैठे बैठे ताली बजाते रहते हैं, ये क्या बात हुई, आपको हमारे समर्थन होना चाहिए। तो ये एक तरह का तनाव होता है, उनकी जिंदगी का तनाव। और वो जो जिंदगी का जो तनाव है वो हमको तुलनात्मक साहित्य में देखने को मिलता। तो और इसलिए वो कहते हैं कि अध्ययन भले ही तुलना करते हो, लेकिन हम ये सिद्ध करते हैं, तुलनात्मक साहित्य वाले लोग सिद्ध करते हैं कि मेरी भाषा श्रेष्ठ है। फ्रेंच विद्वान जब तुलनात्मक साहित्य लिखेगा तो फ्रेंच के बारे में तारीफ ज्यादा करेगा, अंग्रेज लिखेंगे तो अंग्रेजों के बारे में करेगा, जर्मन वाला लिखेगा तो जर्मन के बारे में कहेगा। तो ये इस तरह से रेने वेलेक ने और दूसरे लोगों ने जो विचार किया, उन्होंने कहा कि अंततः ये इसकी दिशा के अंदर ये बढ़ता। अब इसको परिभाषित कैसे किया जाए कि आखिर ये तुलनात्मक साहित्य होता क्या, किस तरह का। तो एक सूसन बेसनेट करके एक विद्वान है जिसने तुलनात्मक साहित्य पर काम किया है, उसकी एक परिभाषा है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। कि तुलनात्मक साहित्य संस्कृति की सीमा से परे पाठ का अध्ययन करता है, जो अपनी प्रकृति में अंतर विद्यावर्ती होता है और जो साहित्य के उस पैटर्न का रिश्ता ढूंढता है जो काल और देश से परे होता है। अब ये संस्कृति की सीमा से परे और देश और काल से परे, इस पैटर्न को आप निकाल के लाए, तब वो साहित्य होता यह है कि सामान्यतः जब हम साहित्य पढ़ते हैं और उसकी आलोचना करते हैं तो किसी भी लेखक को हम सबसे पहले उसमें स्थापित करते हैं कि आप जो है वो किस काल में पैदा हुए। मान लीजिए हम तुलसीदास के बारे में करते हैं तो तुलसीदास परंपरागत जो भारतीय दर्शन है उसके समर्थक हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं और उनकी ये मान्यता है, वो राम भक्ति का करते हैं। उस समय का वातावरण ऐसा था जिसके कारण तुलसीदास ऐसे थे। या जब कबीर का कहते हैं तो कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी थे क्योंकि उनकी जाति श्रेष्ठ जातियों में से नहीं आती थी, तो इसलिए उनके अंदर विद्रोह है, विरोध है और ये आक्रोश है। तो इस आक्रोश का कारण उनकी परिस्थितियां। तुलनात्मक साहित्य वाले कहते हैं कि हमको इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस परिस्थिति में पैदा हो, आप क्या बात कहते हो। जैसे एक उदाहरण देते, मान लीजिए आपने मीरा को पढ़ा, तो मीरा कहती है कि मैंने छोड़ दी भी कुल की कहानी, मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी। अब मीरा की तारीफ करने वाले जो हिंदी आलोचक है वो कहेंगे, सोचिए साहब, मीरा का जो कुल चित्तौड़ राजघराना बहुत प्रतिष्ठित राजघराना हमारा था, उस चित्तौड़ राजघराने की बहू अगर कहती है कि मैंने इस कुल की मर्यादा को छोड़, अब जिसका कुल नहीं होता वो तो क्या कुल की तारीफ करेगा, या उसकी निंदा का भी कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मीरा जब कुल की मर्यादा को तोड़ती है तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, विद्रोही। अब इससे हम जोड़ते हैं, लेकिन तुलनात्मक साहित्य वालों को ये पंक्तियां पसंद नहीं आई। वो कहेगी कि जैसे एक पंक्ति आपको मैं सुनाता हूँ कि जो मैं ऐसो जानती प्रीत किया दुख होय, नगर ढिंडोरो पीटती प्रीतन की जो कोई। यदि मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने से दुख होता है तो मैं सारे नगर में ये दुड्डू बजा देती कि कोई प्रेम नहीं करे, क्योंकि प्रेम करने से दुख होता है। अब ये जो पंक्तियां हैं ये किसी संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है, किसी समाज से जुड़ी हुई नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश काल के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर ये भावना आ सकती है। इसी तरह से आपको कबीर का एक सुनाता हूँ। कबीर दास जो बड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि रहना नहीं देश वीराना रे,
ये जो देश है वीराना पराया देश है, इस देश में मुझे नहीं रहना। अब ये इस देश कौन सा है कबीर के लिए? कबीर के लिए तो ये सारा संसार माया है, तो ये देश है, और हमको तो भगवान क्या रहना, हमारे इस संसार में रहना ही नहीं। लेकिन जब हम दूसरे साहित्य को देखते हैं, जो शरणार्थी होकर के कहीं चले गए और या किसी जगह नौकरी करने चले गए, तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, हमको यहाँ नहीं रहना, हमको अपने देश वापस जाना। तो रहना नहीं देश वीराना रे, ये पंक्तियां आपको उस संस्कृति और काल से अलग ले जाती है। तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण सी चीज है। अब इसके बाद में एक और चीज है जिसको लेकर के समस्या आई कि दो एक देश की एक भाषा। यूरोप में तो तुलनात्मक साहित्य ऐसे ही होता था, लेकिन जब भारत में जब आया है तो कहा भाई भारतीय साहित्य का क्या होगा, यहाँ तो एक देश में बहुत भाषाएं हैं, तो क्या भारतीय साहित्य के लिए भारत से इतर देश का अध्ययन करेंगे तो होगा, या बंगला और हिंदी का भी तुलनात्मक साहित्य हो सकता है? तो ये हुआ कि भारतीय जो साहित्य है वो अलग तरह का साहित्य है, इसलिए तुलनात्मक साहित्य में भारतीय साहित्य को हम एक विशेष स्थान देते हैं, क्योंकि इसके अंदर अनेक भाषाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का सभी जगह पर प्रभाव पड़ा। छायावाद के उम्र जब भी हम होते हैं तो निराला और ये प्रसाद और प्रेमचंद ने सबने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा था। तो जब पढ़ा था तो प्रभावित हुए तो प्रभाव के बाद में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, प्रतिक्रिया से नया सर्जन हुआ। तो ये तुलनात्मक साहित्य वाले कहते हैं कि अपने देश का भी हो सकता है। जब प्रेमचंद का अध्ययन करते हैं, प्रेमचंद पे गांधी जी का असर था, गांधी का टॉलस्टॉय का असर था, तो टॉलस्टॉय का असर प्रेमचंद पर हुआ। तो अब आप तुलनात्मक अध्ययन आप इन दोनों का करिए, कैसे कारण और प्रभाव का होता है। फिर एक और बात कहना चाहता हूं मैं कि अन्य का अध्ययन करता है। अब सारे संसार में जब तुलना करने के लिए आप जाते हो तो आप अन्य का, अदर का, हमारे जैसा नहीं, हम अपनी भाषा का नहीं, बाहर का। ये अन्य कौन होता है? हर व्यक्ति अन्य है, हर भाषा अन्य है, संसार के सारे लोग हमारे लिए अन्य। तो इस अन्य का अध्ययन सबसे पहले जब यूरोप में साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई और उन्होंने उपनिवेशों पर शासन करना शुरू किया, तो आपको याद होगा, हिस्ट्री के गुहा मैम तो जानती होंगी कि युद्ध की पहले ये यात्री सारे संसार में घूमे और उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, उन्होंने पत्र लिखे, उन्होंने संदेश भेजे। तो उन संदेशों में, उस यात्रा वृत्तांत में वो बताते थे कि ये दूसरा देश कैसा, आप जा तो रहे हो भारत, लेकिन भारत कैसा है, तो उस दूसरे की आंख से देखा हुआ था। तो आमतौर से वो स्त्रियों के सौंदर्य और उनके कपड़े और उनके जीवन को लेकर के एक तरह का लस्ट के साथ में उसका वो वर्णन करते, उसको हमेशा छोटा साबित करते थे। तो कहा हमसे वो अलग है। और आज भी वो कहते हैं, देख बहुत छोटी सी, हमारे यहाँ सोच निवृत्ति के लिए हम तो पानी का इस्तेमाल करते हैं साफ सफाई के लिए, और यूरोपियंस तो उस कपड़े का उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं देखो ये तो गंदे रहते हैं, ये हाथ लगाते हैं, हम तो हाथ नहीं लगाते। और भारतीय कहते हैं तो गंदे, पानी के बिना साफ हो ही नहीं सकता। तो ये अभी भी अखबार में आया कि ये जो है गंदे या अफ्रीकी गंदे। तो हमारी जो कल्चर की जो विशेषताएं होती है, उस कल्चर की विशेषताएं अन्य के लिए अलग। अब वो जो अन्य के अध्ययन के साथ में जब आप जाते हैं तो सारे संसार का अध्ययन किया जाता। और अब जब तुलनात्मक साहित्य जब आया, जब आगे बढ़ा, तो कहा कि दो का ही अध्ययन क्यों करो भाई, सभी का करो, सारे संसार का अध्ययन करो। तो क्या विश्व साहित्य हो सकता है? तो ये तुलनात्मक साहित्य के लोगों ने कहा नहीं, वर्ल्ड लिटरेचर होता तो है, लेकिन उनके बीच में आप समानता और असमानता कैसे ढूंढोगे? वो तो बहुत विशाल है। इसलिए ये हुआ कि सबका विश्व साहित्य अलग है। हमारा विश्व साहित्य अलग है, लैटिन अमेरिका का विश्व साहित्य अलग है, सबका विश्व साहित्य अलग है, एक विश्व साहित्य नहीं। और एक विश्व साहित्य भी अगर है तो केंद्र में कौन? हमारे विश्व साहित्य के केंद्र में हम और बाकी सब अन्य। अब आप और दूसरों के लिए आप अन्य हो।
तो ये कुल मिला करके ये जो बहस संबंधी सारी अन्य और वर्तमान की जो बातें होती है, इस विवाद के कारण तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन एक संकट की स्थिति में है। और एक और बात भी मैं कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, हिंदी में लोग तुलनात्मक साहित्य पर कोई कोई व्यावहारिक काम किसी ने किया नहीं। हम लोग जो जो काम करते हैं, हम तो एक सिद्धांत को समझने का काम करते हैं। कोई एक दो लोगों ने है जिन्होंने सिद्धांत पर भी काम किया, उस सिद्धांत से हमारा परिचय हो गया। लेकिन जो वो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आप इम्प्लीमेंट करके और किसी साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत कर दो, ऐसी पुस्तकें हिंदी में नहीं है। और जो थोड़ी बहुत पुस्तकें हमें मिलती है, वो हिंदीतर भाषी लेखकों ने हिंदी से तुलना करके अपने साहित्य का अध्ययन किया है, और उसमें भी वो अपने साहित्य की विशेषता बताना चाहते हैं, और उन विशेषताओं से हम उनका साहित्य समझ सकते हैं। तो ये हमारा और उनका तो किस तरह से हो सकता है उसकी। फिर रहने वाले कहते हैं भाई कुल मिला करके आप साहित्य लिखते हो ना, आप सांस्कृतिक दस्तावेज थोड़ी लिखते हो। लेकिन ये होता अंतर विद्यावर्ती है। अंतर विद्यावर्ती है तो इंटरडिसिप्लिनरी है, तो आपको दूसरे डिसिप्लिन की भी जानकारी होनी चाहिए। आपको इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। अगर आप उसका नहीं कर सकते तो आप तुलनात्मक साहित्य का ढंग से अध्ययन नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है आपने मुझे जितना समय दिया था उसके हिसाब से मैंने अपनी जो कुछ बातें हैं वो आपको बताई। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। Priyanka, I'll just take a minute before you go to Professor Jitendra. अब मेरे को सुनाई देगा कि नहीं देगा ये पता नहीं। हाँ जी। राम जी, आपकी बातों ने हमें बहुत कुछ नए चीजें बताई। जैसे अभी हम जब आपने कहा कि हिंदी डिसिप्लिन में कंपैरेटिव लिटरेचर पे ऐसे कोई सब्सटेंशियल काम नहीं हुआ है, हिंदी लिटरेचर ज्यादातर स्टैंड अलोन काम हुआ है। उससे हम बहुत एनकरेज्ड है कि हम हिंदी यूनिवर्सिटी में जो हिंदी डिपार्टमेंट है वहां पर कंपैरेटिव लिटरेचर का काम जरूर कराएंगे। एंड जब आपने मैथ्यू अर्नोल्ड एंड यूरोपियन लिटरेचर से शुरू करके फ्रेंच लिटरेचर तक जाके पैरेलल्स विथ हिंदी लिटरेचर ड्रॉ किया, कंपैरेटिव लिटरेचर में इससे बेहतर काम और क्या हो सकता है। एंड आपने कंपैरेटिव लिटरेचर एज ए रिसर्च मेथोडोलॉजी पे भी बात की, और कंपैरेटिव लिटरेचर फॉर पीस, शांति के लिए उस पर बात किए, इन्फ्लुएंसेस की बात किए, यूरोपियन एंड अदर लिटरेचर्स की बात किए, इंटरटेक्सचुअलिटी पॉलीफोनी की बात की, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड उसके तरीके से कैसे हम न्यू हिस्टोरिसिस्ट मेथोडोलॉजी से कंपैरेटिव लिटरेचर हम पढ़ सकते हैं, हिंदी में उसकी बात की। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि टू राइटर्स फ्रॉम द सेम लैंग्वेज कैन नॉट बी टेकन इनटू द डिस्कोर्स ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। यस, डेफिनेटली मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स को कहूंगी जब आप सिलेबस डिजाइन करें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप एक ही लैंग्वेज के दो राइटर्स को कंपैरेटिव लिटरेचर का फ्रेमवर्क में ना डालें। एंड क्रिटिक जो आपने कहा उसका भी हम ध्यान रखेंगे कि कंपैरेटिव लिटरेचर वाज ए वे टू प्रूव सुपीरियरिटी ऑफ वन लिटरेचर ओवर अनदर इन द इनिशियल स्टेजेस। हम ये ध्यान रखेंगे कि हम जब दो लिटरेचर्स को कंपेयर कर रहे हैं, किसी को किसी से सुपीरियर प्रूव ना करते हुए दोनों का इम्पोर्टेंस एंड दोनों का सॉलिडारिटी पे ध्यान देंगे। एंड आप कबीर दास कोट किए टू डिस्कस द यूनिवर्सलिटी ऑफ लिटरेचर, डेफिनेटली आपसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। और मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे कि भारत में 22 भाषाएं हैं, भारत जैसे देश में ही कंपैरेटिव लिटरेचर बहुत अच्छे से हो सकता है क्योंकि हमारे पास 22 भाषाएं हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड है, और 7,000 लैंग्वेजेस जो फोक एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस है, सबको लेके हम कंपैरेटिव लिटरेचर का डिपार्टमेंट शुरू करना चाहेंगे। एंड टॉल्स्टॉय के साथ गांधी एंड टैगोर का पैरेलल बहुत ही अच्छा था। सेल्फ एंड ऑदर पे जो आपने एम्फसाइज किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जेंडर डिस्कोर्सेस इन कंपैरेटिव लिटरेचर पे आपने बात की, दैट वाज वेरी वेरी पर्टिनेंट। एंड सेंटर एंड द पेरिफेरी इन कंपैरेटिव लिटरेचर पे भी आपने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपके सारे बातें हमारे फैकल्टी के लिए एंड स्पेशली मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। मैं सारे पॉइंट्स नोट की हूँ, एक एक पे आपके साथ डिस्कस करूंगी, सवाल पूछूंगी जब हम इसके ऊपर सिलेबस डिजाइन करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार हम आपसे काफी क्वेश्चन आंसर करेंगे। बट अभी मुझे लगता है कि प्रियंका बहुत जल्दी जितेंद्र श्रीवास्तव जी को बुलाने की सोच रही है, तो प्रियंका प्लीज टेक ओवर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you, sir.
That was really thought-provoking, sir. Thank you so much for such a nice presentation. Request Professor Jitendra Srivastava. He's an eminent Hindi poet and critic with 30 books to his critic, which is, in fact, which include Dino Halchal, Anbhay Katha, Sundar Sundar, Bilkul Tumhari Tarah, and many more. And apart from his recognition in the literary fraternity, he has received several prestigious awards that include Bharat Bhushan, Agarwal Puraskar, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, रामचंद्र शुक्ला पुरस्कार, विजयदेव नारायण सही पुरस्कार, प्रीति सम्मान, रामविलास शर्मा आलोचना पुरस्कार, परंपरा ऋतुराज सम्मान, to name a few. And he has delivered more than 50 lectures at various universities and institutions across India. He has also been a jury member of various important awardee committees. Presently, he is a professor of Hindi and director of the International Division at IGNOU, New Delhi. And we request Professor Jitendra to speak. Sir, I think he has... ठीक है, धन्यवाद प्रियंका जी, आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू जी, आदरणीय प्रोफेसर रामबख्श जी, कौशल जी अगर जुड़ी हैं तो आदरणीय प्रोफेसर कौशल जी और प्रियंका जी, और जो लोग भी सुन रहे हैं आप सब लोग। मैं रास्ते में हूँ, 5-7 मिनट से ज्यादा आज नहीं बोलूंगा। मैं जुड़ी हुई हूँ, तबीयत बहुत खराब है, इसके बावजूद भी आपको सुनने के लिए जी। नहीं, मैं 5-7 मिनट में, देखिए दिख रहा होगा मैं रास्ते में हूँ और मोबाइल भी बहुत देर तक कितना चार्ज रहेगा मुझे नहीं मालूम। 5-7 मिनट बात करूंगा, फिर किसी दिन विस्तार से बात करूंगा। तुलनात्मक साहित्य पे रामबख्श जी ने अभी अपनी बात रख दी, मैं उस ओर बहुत नहीं जाऊंगा। मैं इधर पर्यावरण को लेकर के बहुत सारा काम होने लगा है, और यह एक ऐसा विषय है जिस पर जरूरत है इसे सोचने की, हिंदी के लोगों को भी सोचने की जरूरत है और भारत की अन्य भाषाओं के लोगों को भी सोचने की जरूरत है। और जब हम तुलनात्मक साहित्य की बात करते हैं तो ये ठीक है कि हम विश्व की दूसरी भाषाओं के साथ तुलना करें। एक समय था प्रेमचंद को गोरकी के साथ, लुसुन के साथ, और इस तरह से तुलना करके कुछ लोगों ने पीएचडी भी लिखी, कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी। लेकिन भारत के भीतर ही इतनी विषय अध्ययन करने की भी, जैसे पर्यावरण एक ऐसा विषय है बड़े पैमाने पर कहा है, और भारत की शायद ही कोई इस समय पर्यावरण चिंता को लेकर के कविताएं न लिखी जा रही हों, पर्यावरण चिंता को लेकर के कहानियां न लिखी जा रही हों, उपन्यास न लिखे जा रहे हों। तो ऐसे बहुत सारे मतलब, और लगभग सब में, चाहे बांग्ला हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, असमी हो, भारत के भीतर ही तुलनात्मक अध्ययन की इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और यह इसलिए भी विचार करना चाहिए कि जिसे हम भारतीयता का आग्रह कहा करते हैं, भारतीयता का आग्रह तो तभी पूरा होगा जब हम भारतीय भाषाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगी और इस तरह के तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने आएंगे, जुड़ेंगे। कभी हुआ, कुछ लोगों ने शरद चंद्र इस तरह से देखा, कुछ स्त्री मुद्दे और अन्य प्रसंगों को लेकर के काम किया है, लेकिन इस दिशा में और गंभीर काम की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। और विषय आधारित तुलनात्मक, लेखक आधारित तुलनात्मक अध्ययन से अधिक जरूरी है कि विषय आधारित तुलनात्मक अध्ययन हो, विमर्श आधारित तुलनात्मक अध्ययन हो। जैसे दलित साहित्य के क्षेत्र में अब हिंदी में भी इतना काम हो गया है कि उस पर तुलना हो सकती है भारत की दूसरी भाषाओं में जो दलित साहित्य है उसको लेकर के, जो हिंदी में स्त्री दलित साहित्य है और जो मराठी का स्त्री दलित साहित्य है, या मलयालम का या बांग्ला का, उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, और तभी बात बनेगी भी। देखिए क्या है कि एक भाषा चाहे कितनी अधिक संपन्न हो और उसका ट्रांसलेशन चाहे दुनिया की कितनी भाषाओं में हो रहा हो, जब इस तरह से आमने सामने रख करके उनके साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन होता है तो वैशिष्ट्य का पता अधिक चलता है, चीजें अधिक क्लियर होती हैं, ज्यादा निकल करके बातें आती हैं। क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सुन।
अच्छा। तो ज्यादा पता चलता है। मैंने आज सोचा था कि मैं पर्यावरण को लेकर विस्तार से बात करूंगा किसी दिन, और नंदिनी जी किसी दिन और विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि अभी ये जाम में भी गाड़ी फंसी हुई है और सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन यह एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है कि तुलनात्मक साहित्य पे चर्चा हो। हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में न रहें, बांग्ला वाले सिर्फ बांग्ला में न रहें, मलयालम वाले मलयालम में न रहें, भारतीय भाषाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन हो। और हिंदी का विश्व साहित्य के साथ तो होना ही चाहिए। तभी पता चलेगा कि हम कितना आगे आ पाए हैं। चाहे हमारा कथा साहित्य हो, चाहे हमारी कविताएं हो, चाहे हमारा नाट्य साहित्य हो, या यहाँ तक कि विचार की दुनिया में भी देखने की जरूरत है कि कितने मौलिक विचारक हमारे वहाँ आ रहे हैं। और हमारे वहाँ जो समाजवाद की अवधारणा है, जिसे हम लोहिया छोड़ कर देते हैं, नरे छोड़ कर देते हैं, कि समाजवाद समाजवाद का मसला भी देखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर क्या उसकी कोई है। हम मार्क्सवाद को लेकर के तो बात करते हैं, भारतीय ढंग के मार्क्सवाद की भी बात करते हैं, लेकिन जो भारत में सृजित, भारत में पनपा विकसित हुआ जो समाजवाद था, क्या वैश्विक स्तर पर वैचारिक आधार पर उसका कोई तुलनात्मक मामला बन सकता है? और हम साहित्य के हवाले से कर सकते हैं ये। यानी कि ये याद रखना चाहिए कि एक समय था कि भारत में किसी भी अन्य विचारक की अपेक्षा लोहिया से प्रभावित रचनाकारों की संख्या सर्वाधिक थी। हिंदी में, मलयालम में, कन्नड़ में, बांग्ला में, भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिसमें डॉक्टर लोहिया से प्रभावित रचनाकार न रहे हों। यू आर अनंत मूर्ति, जिन्हें लोग मार्क्सवादी समझा करते हैं, यू आर अनंत मूर्ति अपने अंत तक वो लोहियावादी थे। लोहिया के समाजवाद में उनकी रुचि थी। इस ढंग से भी चीजों को देखने की जरूरत है। यानी लिटरेचर को बहुत बड़े पैमाने पर देखने की जरूरत है, सिर्फ उसके भावार्थ तक नहीं कि फ्रेंच में एक इस ढंग की कविता आई, या इंग्लिश में एक कविता आई, या जर्मन में एक कविता आई, और हिंदी में भी एक कविता आई। ठीक है, लेकिन बड़ी बात तब बनती है जब उसका कोई बड़ा वैचारिक आधार बनता है, और वह एक पूरी पीढ़ी को, एक पूरे समय और समाज को परिवर्तित करने की क्षमता से लैस होती है। तो हमें तुलनात्मक साहित्य में यह भी देखने की जरूरत है कि सिर्फ हम लकीर के फकीर न हो जाएं, कि हमने देख लिया कि केदारनाथ सिंह जैसा एक कवि जो है वो फ्रेंच में भी है और हमने तुलना कर ली, या केदारनाथ सिंह जैसा एक कवि बांग्ला में भी है और हमने तुलना कर ली, रघुवीर सहाय जैसा एक कवि किसी अन्य भाषा में हमने, वो अच्छी चीज है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है। ज्यादा फायदा तभी होगा जब बहुत सारी मतलब होने का विषयों की चीजें होंगी, विषय आधारित, मुद्दा आधारित, विमर्श आधारित चीजें होंगी। तो आज आपने मुझे याद किया, मैं बहुत आभारी हूं, और किसी दिन बहुत विस्तार से बात करूंगा इन मुद्दों पर। ठीक है। ओके जितेंद्र जी, बिफोर यू लॉग आउट, मैं दो चार बातें यहाँ अपने फैकल्टी मेंबर्स के लिए एंड बाकी सारे एक्सपर्ट्स के लिए बता दूं। ये जो प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव है, हम लोग भी इग्नू में शुरू से एक साथ काम कर रहे हैं, और ये हिंदी के एक बड़े जाने माने कवि है। उनके कुछ कविताएं बहुत फेमस है, जैसे में उनमें से एक है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया आप गूगल करो तो आपको मिल जाएगा। एंड हम जब भी जितेंद्र जी से मिलते हैं कहते यही पोएम सुनाइए, बार बार सुनते रहते हैं। एंड ही इज वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स। शुरू से कभी भी कोई इशू हो, कोई डिस्कशन हो, मैं उनसे करती रही। एंड सर, आज आपने जो जो बातें की जितेंद्र जी, वो इम्पोर्टेंट है। कंपेरेटिव लिटरेचर एज ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, हम उस पर जरूर काम करेंगे जब हम सिलेबस बनाएंगे अपने कंपेरेटिव लिटरेचर डिपार्टमेंट का। जो न्यू डिपार्टमेंट आ रहा है उसमें हम हिंदी को डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस देंगे एंड एनवायरमेंट पे एम्फोसाइज करेंगे। तब मैं अपना फैकल्टी को बोलूंगी आपसे विस्तार में डिस्कस कर ले। प्रेमचंद के बारे में कर ले, आपका तो प्रेमचंद पे काफी काम है। जेंडर पे कर ले, आप तो जेंडर वुमेन रिलेटेड पोएम्स आपने काफी लिखा है। इनके बहुत सारे कविताएं नारीवाद वाले हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट फेमिनिस्ट दैट यू विल नो। एंड ये बात हम जरूर याद रखेंगे कि सब्जेक्ट रिलेटेड कंपेरेटिव लिटरेचर रादर देन ऑथर रिलेटेड, हम उस पर भी एम्फोसाइज करेंगे। आपकी ये बात काफी इंपॉर्टेंट रहा। मल्टीलिंगुअल पॉसिबिलिटीज पे आप बात की, डेफिनेटली। हिंदी लिटरेचर इन वर्ल्ड लिटरेचर पे बात की। एंड कंपेरेटिव लिटरेचर एज ए सोशल इशू, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो अनंत मूर्ति की बात की, मैं ऑलरेडी अपने फैकल्टी को बोल रही थी, यू आर अनंत मूर्ति को लाओ, उनको हिंदी डिपार्टमेंट में डालते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू। मैं ऑलरेडी उनसे बात कर रही थी जब आपने उसको फिर से दोहराया। एंड आप जो कंक्लूड किए, हु शुड वी कंपेयर विथ हु और whom,
इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो लोगों को नहीं कंपेयर करके दो डिस्कोर्सेस को, दो क्रिटिकल एंगेजमेंट्स को करेंगे। चलो आज आप जल्दी में है, आपका शायद आप एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं, आप जाइए। विश यू हैप्पी जर्नी। आपको दोबारा हम बुलाएंगे, आपकी कविताएं सुनेंगे। एंड थैंक यू फॉर थैंक यू, एक्सेप्टिंग माई इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार। Thank you so much, sir. Our next speaker is Professor Kaushalya Pawar. And Dr. Pawar started her career as an assistant professor in the Sanskrit department in 2008 at Motilal Nehru College at Delhi University. She became an associate professor in the Department of Sanskrit in 2020. She works as a professor in Sanskrit department in the School of Humanities at Indira Gandhi National Open University, New Delhi. Her specialization covers her study and research interest mainly about study of Dharmashastra and literature, Vedic studies, Indian knowledge system, and Dalit literature. She has authored 10 books and 16 curriculum-based edited book of IGNOU. She has completed her minor research project entitled Shastro Mein Shurashstri Vimarsh by the University Grants Commission, New Delhi. She has published 36 research papers and articles in the national and international journal. She has delivered 99 lectures at national and international universities. Currently, she is working as the director of School of Humanities at IGNOU, New Delhi since 1st October 2022. We welcome Professor Pawar to deliver her lecture. Okay, Priyanka, I will just take a few seconds before Professor Kaushal starts speaking. प्रोफेसर कौशल के बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अभी अगर मैं प्रोफेसर कौशल के बारे में बोलना शुरू करूँ तो शायद 1.5 घंटा कम पड़ जाएगा। शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल, सर्वाइवल एंड सक्सेस। उनकी जिंदगी में काफी स्ट्रगल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सर्वाइव भी किया एंड थ्राइव भी किया। अभी वो सक्सेसफुली स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज को चला रही है। शी इज द डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत 4 डिसिप्लिन को वो सक्सेसफुली चला रही है। साथ साथ अपना क्रिएटिव राइटिंग, अपना लिटरेचर एंगेजमेंट्स के साथ वो चला रही है। आज उनका तबीयत खराब होते हुए भी वो ज्वाइन की। And apart from being a good scholar and a good administrator, Professor Kaushal is also a very dear friend. Thank you, Professor Kaushal, for having accepted our invitation. आपका लेक्चर के बाद मैं कमेंट करूंगी। We welcome you. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा अमृतगमय मृत्योर्मा अमृतगमय। सर्वेभ्य नमो नमः। सबसे पहले मैं हिंदी यूनिवर्सिटी के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू जी को बहुत 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 हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हिंदी विश्वविद्यालय कोलकाता आपके नेतृत्व में और ज्यादा फले फूलेगा और ऐसी जो नेतृत्व करती हैं जो खुद सृजनात्मक कार्यों को बहुत ही शिद्दत से न केवल राष्ट्रीय जगत पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी अपनी आवाज को बुलंद करती हैं, ऐसी आवाज को आज यहाँ हिंदी विश्वविद्यालय कोलकाता पाकर मुझे लगता है बहुत ही गौरवान्वित का अनुभव कर रहा होगा। आपके नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय न केवल भारत के विश्वविद्यालयों में बल्कि जो हमारे जो तमाम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत के विश्वविद्यालय हैं उनमें एक नई ख्याति आपके नेतृत्व में जरूर प्राप्त करेगा, ऐसे मुझे आशा है। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं कितना साथ दे पाती हूँ अपनी बातचीत का, क्योंकि थोड़ा एकदम सिस्टम बंद है। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और क्योंकि आपके माननीय कुलपति जी का जो एक तरह से आग्रह था, उनके आग्रह को देखते हुए मैं आज के इस व्याख्यान को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यह मेरे लिए भी बहुत ही सीखने का एक अवसर है कि किस तरह से कंपैरेटिवली वर्ल्ड लिटरेचर, खासकर जो विश्वविद्यालयों में जो काम कर रहे लोग हैं, शिक्षक हैं, सृजनात्मकर्ता हैं, वह कैसे इसको देखते हैं। ये जो दुनिया है, पूरे विश्व का जो साहित्य जो रचा जा रहा है, उस साहित्य में कैसे हिंदी साहित्य और खासकर मैं इस विषय पर बात करने से पहले बात करूंगी कि जो संस्कृत शास्त्र है, संस्कृत ग्रंथों की जो एक परंपरा है, वह कैसे जो कंपैरेटिव लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर है, उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करता है।
मेरा जो आज का चर्चा रहेगा वो इस विषय पर रहेगा। उससे पहले कि मैं मानव रूपी साहित्य संस्कृत ग्रंथों के विशेष संदर्भ में विषय पर अपनी बातचीत शुरू करूं, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं, प्रोफेसर रामबख्श जी और प्रोफेसर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से जो तुलनात्मक विषय साहित्य है उस पर अपनी चर्चा की है। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने, जैसे कि माननीय कुलपति जी ने भी अपने प्रस्थान बिंदु में बता दिया कि जो जो हमारे जो जो साहित्य के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाहे वह मानव समाज शास्त्र को लेकर हो, दलित साहित्य को लेकर हो, स्त्रीवादी साहित्य को लेकर हो, जो मानवीय मूल्यों को रखने वाला, जो रचने वाला साहित्य उसको लेकर हो, तमाम इन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा प्रोफेसर रामबख्श जी ने और प्रोफेसर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी ने की है। मैं थोड़ा सा इनकी बातचीत को, ताकि रिपीट ना हो, आपके जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, जो फैकल्टी जुड़ी हुई है, मैं निश्चित रूप से ये मानती हूँ कि फैकल्टी अपने आप में बहुत समृद्ध होगी, खासकर हिंदी साहित्य और तुलनात्मक विषय साहित्य में अपने योगदान को देखते हुए। फिर भी मैं कुछ बिंदुओं पर, जो हो सकता है बहुत ही अलग ना हो, लेकिन इस पर चर्चा करना जरूर चाहूंगी। मैं बिल्कुल एकदम मानती हूँ कि इस विषय पर मैं बहुत बोलने की इच्छुक थी, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा साथ अगर नहीं दिया, तो आप मुझे आज के इस व्याख्यान में थोड़ा सा झेलेंगे। मैं जब बात करती हूँ तुलनात्मक विषय साहित्य की, तुलनात्मक विषय साहित्य की चर्चा करने से पहले जो संस्कृत ग्रंथों का जो तुलनात्मक फ्रेम है, जो रचना है, जो जो न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर जो साहित्यों में जो एक अपनी एक दखल अंदाजी करता है, उनमें जो दिए गए, जो रचित जो हैं, जो मानव को मानव के रूप में जो एक रेखांकित करते हैं, उस पर मैं बातचीत करना चाहूंगी। और उनकी उस संस्कृत विषय के संदर्भ में बातचीत करने से पहले मैं हिंदी साहित्य पर भी जरूर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि मैं संस्कृत की प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरा हिंदी साहित्य में भी उतना ही दखल अंदाजी रहती है। मेरी ऑटोबायोग्राफी बवंडरों के बीच, जो हिंदी में मूलतः हिंदी में मेरे द्वारा लिखी गई है, आप सभी से मैं थोड़ा सा प्रिविलेज लेते हुए भी कहूंगी कि आप लोग भी मेरी उस रचना को जरूर देखें, जो मानवीय मूल्यों को एक तरह से दस्तावेज है। जैसे कि आपकी माननीय कुलपति जी ने भी इशारा किया, उसी इशारे के रूप में मैं भी इशारे के रूप में ही बात करते हुए, जो हमारा जो हिंदी साहित्य है वो कैसे वर्ल्ड लिटरेचर को, जो कंपैरेटिव वर्ल्ड लिटरेचर है, उसमें अपनी दखल अंदाजी कैसे करता है। खासकर प्रोफेसर जितेंद्र जी ने चर्चा भी की थी कि जो दलित साहित्य है हमारा, वह कैसे मानव रूपी साहित्य के रूप में रेखांकित किया जाना चाहिए, और उसको न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में आज उसको पढ़ाया जा रहा है। वो पढ़ाया इसलिए नहीं जा रहा कि उसमें कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बल्कि इसलिए जा रहा है क्योंकि उसमें ऐसी चीजों को एक तरह से रेखांकित किया गया है, ऐसी सृजनात्मकता है, जिन डिप्राइव्ड सेक्शन की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उन्होंने उसको भोगा है। यानी कि भोगा हुआ यथार्थ दलित साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। आप क्योंकि हिंदी विश्वविद्यालय है, तो हिंदी विश्वविद्यालय के जरूर अध्यापकों ने, छात्रों ने झूठन पढ़ा होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। आप उसको पढ़ के देखिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी जो मानवीय रूपी जो संरचना, जो जो भोगा हुआ यथार्थ, जो सच में एक मनुष्य के मनुष्य होने पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगा देता है, कि जिस तरीके से एक जो अंडर प्रिविलेज्ड, जो हमारी जो क्लासेज हैं, जो दलित लोग हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वो जब लिखते हैं, उनकी जो रचना है, जो सॉरी, उनकी जो रचना है वो जब बाहर आती है, तो कैसे एक दस्तावेज बन जाती है मानव रूपी साहित्य का। मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए अब आगे जो मानव रूपी साहित्य किसे कहा गया है उस पर अपनी बातचीत करूंगी। मानव रूपी साहित्य का अर्थ एक ऐसे साहित्य से है जिसमें मानव को केंद्र में रखकर जो वस्तुएं हैं हमारी, उनकी भावनाएं, प्रकृति और जीवन की घटनाओं को, जैसे मैंने अभी झूठन का जिक्र किया, उस झूठन में जो जीवन की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का रेखांकन जो एक तरह से किया गया है, मानवीय गुणों और विशेषताओं से चित्रित किया जाता है, इसलिए मानव रूपी साहित्य कहा गया। अमानवीय चीजों को मानव के रूप में, मानव अमानवीय चीज जैसे जो
जैसे पेड़ पौधे हैं हमारे, या हमारी हमारी कोई भी निर्जीव वस्तु है, उसको मानव के रूप में रेखांकित करना, वो चिन्हित करना, उसके स्वभाव के रूप में प्रस्तुत करना, जिसमें जीवंत और मानवीय वो लगने लगे। उदाहरण के लिए हम, जैसे मैंने अभी कहा कि पेड़ पौधे, नदियां, अन्य निर्जीव वस्तुएं, जैसे अभी माननीय कुलपति जी ने प्रोफेसर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा रचित कविता सोन चिड़िया, इसका जिक्र किया। ये जो तमाम जो वस्तुएं हैं, ये तमाम जो सृजनात्मकता के रूप हैं, जो विधाएं हैं हमारी, ये मानव रूपी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। मतलब जो रूपक है, प्रतीकात्मकता है और कल्पना है, उनके माध्यम से पाठकों को गहराई और अर्थ प्रदान करती है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, हितोपदेश, कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, दर्शन पुराण साहित्य में मानव रूपी तत्वों को हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर जानवरों के रूप में या अमूर्त विचारों के रूप में एक तरह से मानव का रूप प्रदान किया गया है। संस्कृत साहित्य में मानव रूपी साहित्य का विशेष स्थान रहा है। अगर मैं बातचीत करूं वैदिक साहित्य की, वैदिक साहित्य में हमारे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और बाद का जो साहित्य रचा बसा है वह आता है। आप देखिए, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, जो अंग्रेजी में भारतीय ज्ञान परंपरा की, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें, उर्दू में करें, हिंदी में करें, या तमाम हमारे मानव समाज शास्त्र के विषय हो, हमारा अर्थशास्त्र हो, जितनी भी हमारे ज्ञान की जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जब हम बात करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की, तो संस्कृत साहित्य के बिना IKS की बात करना, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करना बेमानी है। क्योंकि हमारा जो प्रथम जो साहित्य है, जो एक तरह से साहित्य के रूप में पूरी दुनिया भर में जो जाना गया, वह हमारा वेद का ऋग्वेद था। चाहे उसके डायमेंशन कुछ भी हो, लेकिन एक तरह से लिखित जो हमारा दस्तावेज है, जो लिखित रचना है, सबसे पहले वह रचना एक तरह से ऋग्वेद का, वेद में से ऋग्वेद को माना गया है। वो चाहे आप भाषा शैली के रूप में देख लीजिए, स्क्रिप्ट में रूप में देख लीजिए, वो एक डायमेंशन है, आप उसके ऊपर अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो पूरा विश्व साहित्य भी मानता है कि जो सबसे पहला ग्रंथ, सबसे पहली जो साहित्यिक रचना है, वह हमारा वेद है, और वेद में भी ऋग्वेद। ठीक उसी तरह मैंने जब कहा कि जो हमारी जो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की जहां हम शुरुआत करते हैं, वहां हम न केवल मनुष्यों के द्वारा रचित, मनुष्यों को प्रतीक के रूप में या एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य की प्रतीकात्मकता की बात करते हैं, लेकिन रूपक हम पशु पक्षियों, प्राकृतिक वस्तुओं, अमानवीय तत्वों को, जो मानवीय गुण है, भावनाएं हैं, संवाद के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी मैंने ऋग्वेद का जिक्र किया, ऋग्वेद के जो संवाद सूक्त है, यानी कि जो डायलॉग जो सिस्टम है हमारा, संवाद से हम एक दूसरे की आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम कंपैरेटिवली वर्ल्ड लिटरेचर की बात भी करते हैं, तो क्या है ये तुलनात्मक जो विश्व साहित्य है, वह कैसे होगा? हमारी जो रचना है और उनकी रचना है, उनका हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक उसी तरह जो हमारी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जो पंचतंत्र है, वो हमारी पशु पक्षियों के माध्यम से, प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से रचा बचा है। वो जो रूपक है, वो नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाता है, गहरी दार्शनिकता उसमें दिखाई देती है। और जो हमारी अवधारणाएं हैं, क्या कुछ बीच में मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? ठीक आ रही है। क्लियर है? क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच बीच में छींकती भी रहूंगी, आप मुझे बियर करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बातचीत को पूरा करूं। ये जो हमारी जो कथाएं हैं, उन कथाओं में कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम बढ़ा पड़ा है, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्रोत जिसको हम कहेंगे, वह हमें दिखाई दे रहा है। पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। उनके पंचतंत्र में एक कहानी आती है कौवे और लोमड़ी की। जो कौवा है, वो एक तरह से उसको रोटी का टुकड़ा मिलता है, और वो रोटी का टुकड़ा लेके उड़ जाता है। जब वो उड़ रहा होता है, तो एक लोमड़ी नीचे से देखती है उसको, ऊपर की तरफ। उसको देखता है कि वो देखती है लोमड़ी कि कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा है। तो वो देख के एकदम उसको लगता है कि रोटी का टुकड़ा मुझे मिलना चाहिए, मैं उसको कैसे प्राप्त करूं? वो क्या करती है, वो कौवे की तरफ देख कर कहती है कि हे कौवे, तुम कितने सुंदर हो,
तुम्हारे पंख कितने चमकीले हैं, तुम्हारी आवाज कितनी सुनहरी है, मीठी है। तुम इस पूरे जितने भी वृक्ष हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, उन सब में सुहावने पक्षी हो। यदि तुम्हारा स्वर भी मतलब मुझे पता है कि तुम्हारा स्वर भी बहुत मधुर होगा और तुम निश्चित ही पक्षियों के राजा बन सकते हो। तो उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम एक छोटा सा अपनी आवाज, मधुर आवाज से मुझे सुना दो, तो मैं निश्चित रूप से ये समझ जाऊंगी कि तू कौवे, जो कौवे को कहा जाता है कि इसकी आवाज अच्छी नहीं है, काव काव जैसी आवाज है, वो निश्चित रूप से उस अवधारणा को खत्म किया जा सकता है अगर तुम अपनी आवाज मुझे सुना दो। तो जो कौवा है वो लोमड़ी की चापलूसी वाली बातों में आ जाता है और वो सोचता है कि इस लोमड़ी को मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए, मुझे अपनी आवाज इसको सुनने के लिए बतानी चाहिए। और जैसे ही काव काव की आवाज करने लगता है, जो रोटी का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाता है। अब जैसे रोटी टुकड़ा गिरता है चोट से, तो लोमड़ी तुरंत उसको उठा लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जो मोरल ऑफ द स्टोरी है इसमें, वो जाने से पहले लोमड़ी जो कहती है वो कहती है, हे कौवे, चापलूसों की बात पर विश्वास करना मूर्खता है। जैसे आप अपना भोजन चापलूसी में फंसकर गवा बैठे, इसलिए अगली बार सावधान रहना। तो ये जो मानव रूपी तत्व है, कौवा और लोमड़ी दोनों के सोचने, बोलने, चलाकी करने वाले दिखा है। बेसिकली ये मानवीय स्वभाव का एक तरह से इशारा है, उसका उदाहरण है। जैसे कौवे में जो एक अभिमान जो जागृत हुआ और लोमड़ी में जो चतुराई जागृत हुई, ये तो मानवीय स्वभाव है, चतुराई होना, अभिमान करना। तो इनके माध्यम से मानवीय स्वभाव को चित्रित एक तरह से किया गया है। और इसके जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, चापलूसी से हमें सावधान रहना चाहिए। ये कहानी बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं केवल, बल्कि जो हमारी व्यवहारिक जीवन में, जो हमारी जो रचा बसा जो संसार है, उसमें भी सावधान रहने की जरूरत है। और अभिमान, बुद्धिमान बनने के लिए हमें इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। मैं दूसरा एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगी, हितोपदेश का। हम सब जानते हैं कि पंचतंत्र जिस शैली में लिखा गया है, हितोपदेश भी उसी शैली में लिखा गया है, जिसमें पशुओं के माध्यम से मानवीय गुण और जो अवगुण है हमारे, जैसे पीछे पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी में मैंने बताया, उसमें फंसना, ठीक उसी तरह जो हितोपदेश है उसमें भी एक कहानी आती है, दो बिल्लियां और बंदर। आपने जरूर सुनी होगी ये कहानी, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगी कि एक बार जो दो बिल्लियां थी वो जंगल में घूम रही थी, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला और दोनों आपस में इस बात पर झगड़ा करने लगी कि रोटी का टुकड़ा कौन ज्यादा खाए, कैसे बटे। तो वो कहती है कि मैंने पहले देखा है, मेरी है, दूसरी कहती है मैंने पहले देखा, मेरी है। तो झगड़ते झगड़ते थक जाती है। एक चालाक बंदर उन दोनों को देख रहा होता है सावधानी से, वो सोचता है कि ये मेरे लिए बड़ा अवसर है और ये रोटी किसी न किसी तरीके से मुझे मिलनी चाहिए। बंदर आता है और कहता है कि दोनों जो रोटी हैं, वो दोनों जो आप झगड़ रहे हो रोटी को लेके, मैं बराबर बराबर में बांट दूंगा। लियो ने सोचा ये भी ठीक है, बंदर न्याय कर रहा है हमारे साथ। रोटी के दो हिस्से कर देता है बंदर और जानबूझ के एक हिस्सा छोटा करता है और एक बड़ा करता है और उसको तोलता है। जैसे ही तोलता है तो जो बड़ा हिस्सा है वो नीचे आ जाता है, छोटा हिस्सा ऊपर चला जाता है। तो वो जो बराबर करने के लिए फिर वो जो बड़ा वाला हिस्सा था उसमें से वो थोड़ा काट लेता है, खा लेता है दूसरा, और उसको कोशिश करता है, फिर दूसरे वाला हो जाता है। ऐसे करते करते वो जो बंदर था, उस बंदर ने सारा का सारा काट काट के सारी रोटी खा ली। तो बिलिया जो थी उसे वो देखती रहेगी और बाद में अपनी मूर्खता पर पछताने लगी। जो बिलिया और बंदर है, वो जो एक तरह से मानवीय स्वभाव है, ईर्ष्या करना, झगड़ालू होना, चालाकी, एक तरह से कैसे जानवरों को बोलते और तर्क करते हुए इसमें दिखाया गया है। ये मानव स्वभाव का प्रतीक एक तरह से इसको हम कह सकते हैं। और नैतिक शिक्षा इसमें हमें ये मिलती है कि हमारे जो आपसी झगड़े हैं उसका फायदा हमेशा तीसरा व्यक्ति उठाता है। समझदारी और एकता में से काम लेने की इसमें सीख दी गई है। ये एक तरह से हमारी जो कथाएं हैं, उन कथाओं में कैसे एक तरह से मानवीय मतलब जो ईर्ष्या है उसको दर्शाया गया है। अब मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगी जातक कथाओं का। एक शेर था और वह शेर बहुत क्रूर था। वो जंगल में
एक तरह से सारे पशु पक्षियों को मारकर खा जाता था, जिससे सारा जंगल त्राही त्राही कर चुका था। तो एक दिन जितने जंगल के जानवर थे, उन्होंने आपस में सलाह की कि ऐसे तो इससे अच्छा तो ये है कि हम अगर एक-एक करके इसको एक दिन के भोजन का प्रबंध कर दें, तो हम बचे रहेंगे। कम से कम थोड़े दिन तो बचे रहेंगे। तो वो कहते हैं उसको बंद उसका सारे सारे जानवर इकट्ठा सॉरी सारे जानवर इकट्ठा होके उसके पास जाते हैं, शेर के पास, और शेर के सामने अपना ये प्रस्ताव करते हैं। तो शेर जो है वो इस प्रस्ताव के माध्यम से सहमति प्रकट करता है। तो जंगल के हर हर जो सदस्य थे वो हर दिन बांट लेते हैं कि एक दिन तुम जाओ, एक दिन तुम, ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही जंगल में धीरे धीरे जानवरों की बारी आती है। एक बार एक खरगोश की बारी आती है शेर का आहार बनने के लिए। तो वो जो खरगोश है, वो खरगोश बड़ा चालाक था। वो सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। है वो तय सीमा पे से लेट जाता है। जब शेर उसको जंगल में वेट कर रहा होता है, तो वो तय सीमा से लेट हो जाता है। तो इतने में जो शेर है वो गुस्से से लाल हो जाता है। तो शेर आकर कहता है, सॉरी माफ करना, खरगोश आकर शेर को कहता है कि मैं मतलब रास्ते में अटक गया था। मैं तो पूरे समय पर ही आपके पास पहुंचा था, लेकिन एक दूसरा शेर मुझे रास्ते में मिला और उस शेर ने मुझे कहा कि तुम्हारा शेर कमजोर है, मैं ताकतवर हूं, इसलिए तुम्हें उस शेर के पास नहीं जाना चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आया। तो शेर तो पहले से ही गुस्से में था। तो गुस्से में वो, और गुस्से में आके वो कहता है कि बताओ मुझे कहाँ है वो शेर, चलो मुझे उसको अपने साथ, मुझे उस शेर के पास लेके चलो। तो खरगोश पीछे पीछे शेर उसके चला जाता है। तो आगे जाके खरगोश एक कुएं की तरफ इशारा करता है और ये कहता है ये शेर इसमें है। तो जैसे ही शेर झांकता है कुएं में, तो उसको अपनी परछाई दिखाई देता है और वो दहाड़ता है और वो छलांग लगा देता है। तो इससे हम क्या देखते हैं? इससे हम ये देखते हैं कि कैसे मतलब जो शेर था, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो चतुर चालाक था, जो खरगोश था, उसने अपना शिकार शेर को बना लिया। तो ये जो मानवीय रूप है हमारे साहित्य के, वो चाहे भारत हो या भारत के बाहर के जो साहित्य हो, उन साहित्य में कैसे ये साहित्य उस संदेश को दे जाते हैं कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैं बात जरूर कहूंगी, जब हम कालिदास को पढ़ते हैं, मैंने बीच में इशारा किया था कि महाकवि कालिदास को संस्कृत जगत में या भारत में शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? वो इसलिए क्योंकि उनकी जो ड्रामेटिकली जो फॉर्म है, जो जो उनकी शैली है, जो भाषा है, जो उसमें जो रचनाबद्धता है, क्रमबद्धता है, प्रकृति का वर्णन है, ये तमाम जो चीजें हैं वो शेक्सपियर में कहीं ना कहीं हमें मिलती हैं। इसलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब मैं कालिदास का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। अगर आपने मेघदूत का नाम सुना हो, तो कैसे महाकाव्य का महाकवि कालिदास के नाटकों और काव्यों में प्रकृति और अमानवीय वस्तुओं को मानव रूपी में चित्रित किया गया है। जैसे मैंने अभी बताया मेघदूत और रीतिसागर। मेघदूत में बादलों और नदियों को मानवीय गुण के रूप में बताया गया है। कैसे? अगर हम मेघदूत का छोटा सा उदाहरण दो, उसमें यक्ष और यक्षिणी है जो बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो एक बार किसी कारण से यक्ष और यक्षिणी बिछुड़ जाते हैं, तो कैसे जो जो कैसे वो यक्ष अपने प्रेयसी को बादलों के माध्यम से संदेश भेजता है। तो ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से साहित्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे ही हम दर्शन के रूप में देख सकते हैं और पुराण साहित्य के रूप में भी देख सकते हैं। जो संस्कृत का मानव रूपी साहित्य है, वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि गहन नैतिक, दार्शनिकता, सामाजिक संदेश को लिए हुए है। साहित्य जीवन की जटिलताओं को सरल और प्रतीकात्मक रूप से समझाने में सहायक होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो हमारा जो जो तुलनात्मक जो भाषा अध्ययन है,
साहित्य का अध्ययन है, शिल्प की दृष्टि से हो, और प्रकृति द्वारा रचित जो हमारे बिंब है उनके माध्यम से हो, वह हमें एक ऐसे संसार की तरफ लेकर जाता है जो एक तरह से जो एक कंपैरेटिव, जो माफ कीजिएगा, जो एक ईर्ष्या की भावना से रचा बसा नहीं होता है, जो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसी भावना से नहीं होता है, बल्कि ऐसे रचना को ऐसे फलक पर लाकर रखता है कि पूरा विश्व साहित्य उसको अपने दृष्टिकोण से देखने का, परखने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह जैसे जब हम वेदों की बात करते हैं तो पूरे विश्व ने वेदों की तरफ देखा। जब हम भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का वर्णन करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, हमारी जो भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हो, चाहे हमारे विश्व की अन्य भाषाएं हो, जो जर्मन हो, जो जापानीज हो, रशियन हो, तमाम जितनी हमारी जो लिंग्विस्टिक फॉर्म है उसमें हो, कैसे तुलना करता है एक साहित्य, ये एक बहुत देखने की बात है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातचीत को विराम देना चाहूंगी। एक बार फिर से मैं हिंदी यूनिवर्सिटी कलकत्ता की बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे समय दिया। हो सकता है मैं आज विषय के साथ न्याय नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगी, बिल्कुल मैंने एकदम वही बोला जो मैंने अभी तक सीखा होगा। मैंने इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की, मैं कर ही नहीं पाई, मुझे बहुत फीवर था, रात को भी देर रात बहुत फीवर था। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जो संस्कृत साहित्य में जो मानव रूपी तत्व है, वह मानव रूपी भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करते हुए कैसे तुलनात्मक विश्व साहित्य को एक ऐसा संदेश दे जाते हैं जिसकी वजह से तमाम विश्व के साहित्यों को संस्कृत साहित्य की तरफ देखना पड़ता है। और एक एज बीइंग ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत, मैं ये कहूंगी कि आज जो दुनिया भर का जो साहित्य रचा बसा गया है वह संस्कृत की तरफ जरूर देखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू जी, जो मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं और कुलपति के पद को सुशोभित कर रही हैं, मैं उनको हृदय से बधाई देते हुए धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे इतने बड़े विद्वानों के बीच में, खासकर जहां प्रोफेसर रामबख्श जी और प्रोफेसर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी जैसे कवि और लेखक हूँ, उनके बीच में मुझे आदमी सी लेखिका को और प्रोफेसर को आपने बीच में मुझे आमंत्रित किया। मैं प्रियंका जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। सभी तमाम जो आभाषी माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सब का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। Thank you so much, ma'am. Request our VC ma'am to take a few words. Professor Nandini, please unmute yourself. I think you are muted. Okay, sorry. Can you hear me now? Am I audible? Okay. प्रोफेसर कौशल जो है वो संस्कृत की एक बहुत अच्छी स्कॉलर है एंड स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के डायरेक्टर तो आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेती है। जैसे आप देख रहे हो उनका तबीयत खराब है, बट वो यूनिवर्सिटी का काम हो, डिपार्टमेंट का काम हो, 4 डिपार्टमेंट को बहुत स्मूथली चला रही है। एंड जो उनका ऑटोबायोग्राफी है बवंडरों के बीच में, वो काफी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, जिसमें कि उनका जीवन का सब कुछ, उनका स्ट्रगल, सर्वाइवल एंड सक्सेस स्टोरी है। मैं कहूंगी आप लोग उसको जरूर पढ़ें। प्रोफेसर कौशल संस्कृत लिटरेचर को वर्ल्ड लिटरेचर का फ्रेमवर्क में प्लेस करने की कोशिश की, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात की। प्रोफेसर कौशल, जब हम संस्कृत डिपार्टमेंट खोलेंगे, हमारे यहाँ अभी हिंदी डिपार्टमेंट है, ट्रांसलेशन स्टडीज डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कंपेरेटिव लिटरेचर में अभी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। मेरी बात भी हो गई है कंसर्न अथॉरिटीज से कि मैं कंपेरेटिव वर्ल्ड लिटरेचर डिपार्टमेंट शुरू कर रही हूँ। उसके अंदर हम सारे भारतीय भाषाओं, 22 भारतीय भाषाएं जो है, उन सबका एमए प्रोग्राम खोलेंगे एंड हम संस्कृत का एमए और बीए कोर्सेज भी जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे। तब हमें आपकी एंड स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के सारे संस्कृत के टीचर्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप जरूर हमें सिलेबस डिजाइन में मदद करें, आपका वास्ट एक्सपीरियंस के चलते। और आपने जो कंपेरेटिव लिटरेचर का ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की बात की, लिटरेचर फॉर ह्यूमैनिटी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जरूर कोई ना कोई ब्लॉक यूनिट डालेंगे, संस्कृत लिटरेचर एज ए पार्ट ऑफ कंपेरेटिव लिटरेचर विच टॉक्स अबाउट लिटरेचर फॉर ह्यूमैनिटी, जिसमें कि पंचतंत्र, हितोपदेश जैसे टेक्स्ट आप तो काफी
भी की, वैदिक लिटरेचर की बात की, इंडियन नॉलेज सुविधास एंड शेक्सपियर जैसे एक दो ब्लॉक्स यूनिट्स हम जरूर लेंगे। एंड आपका एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क्स इन कंपेरेटिव लिटरेचर। जैसे हम सारे लैंग्वेजेस के न्यूएंसेस को समझे, फिर हमें उसको कंपेरेटिव लिटरेचर का फ्रेमवर्क और एंगेजमेंट में डालना चाहिए। आपकी बातें काफी इंपॉर्टेंट थे, आपका तबीयत खराब होते हुए भी आपने इतनी सारे बातें बोली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन। हम in future we will continue to invite you as and when we are ready to invite you people। अभी हम वेबिनार चला रहे हैं, जब हमारा सेमिनार शुरू हो जाएगा, हम अपने न्यू कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम डेफिनेटली आप सबको इनवाइट करेंगे। With this, I will take a break and I make it open for the participants to ask any questions if they have for Professor Kaushal and Professor Rambergs। दोनों ही यहाँ हमारे सामने हैं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो उन दोनों से पूछ लें। एंड प्रियंका, उसको आप 5 मिनट में वाइंड अप करें, 12:30 से पहले, 12:30 को खत्म करें। तो कोई क्वेश्चन है तो आप ले लीजिए। कोई स्टूडेंट या फैकल्टी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछे, या तो कोई सजेशन है तो बताएं। Special comments you want to add? वेल, अगर किसी का कोई स्पेशल क्वेश्चंस या कमेंट्स नहीं है तो फिर आप इसको वाइंड अप करें। I take this opportunity from our Honorable Vice Chancellor Ma'am to express my thanks to her. And I also express thanks to our administrative division, our FO sir and Raj, for the technicalities that they have tried to sort out. I express my thanks to the faculty members and to the students who have participated, who have tried to listen, who have shown their patience to listen to this wonderful talk. And I express my respect and regards to our Vice Chancellor Ma'am. And I also express my thanks to all the speakers whose illuminating talk and their thought-provoking visions have really enabled us to think of new visions and new vistas of comparative literature studies. And we really hope, as Ma'am has told, that we really hope to involve ourselves, to involve our university to undertake new, to open up new departments and new studies and new schools that may encompass comparative literature, and we will try to encompass new vistas and avenues of world comparative literatures. So I really thank our VC Madam again to really organize this lecture series. In fact, we are from history, and our concern is certainly to develop theories and other mainly policy makings and other environmental issues that really address environmental issues, social issues, cultural issues, and we really try to incorporate literature studies into historical discourses. And I really hope that if I in future, I'll try to incorporate literary history in the broad discourse of historical research, because history has tried to incorporate, history would try to incorporate comparative studies and comparative literature in the near future as well. So this is really great for all of us to know all the vistas and avenues of this literature studies. And I really hope that in the next phase as well, as Ma'am has told, that we would like to listen more to this literature, more to these discussions on literature, and we are thankful to all. Thank you so much. Thank you. So Professor Rambergs and Professor Kaushal, thank you so much once again. Namaskar. And congratulations to Priyanka.